Dear students, Assalamu alaikum. It is a matter of great pleasure that today Office of Career Services, in the leadership of Mr. Muhammad Azim Naz, Director GMT Qaid-e-Azam Campus Lahore, has invited an eminent personality from corporate sector, which is a reputable pharmaceutical group. Respectable Mr. Muhammad Azim Naz, Honorable Chief Guest Mr. Farooq Hamid, Chief Financial Officer, Wilshire Laboratories Private Limited, Pakistan, dedicated faculty of UMT Qaid-e-Azam campus, and dear students, I, Muhammad Bilal Ashraf, Assistant Manager Career Services, welcome you all in today's knowledge gaining session, which will be conducted by Mr. Farooq Saeed, Mr. Farooq Hamid, Chief Financial Officer at Wilshire Laboratories, Pakistan Limited, Lahore, Pakistan Private Limited. Mr. Farooq Hamid is a finance specialist with more than 12 years of experience. He is currently heading Finance and Accounts Department of a reputable pharmaceutical group. He had great accomplishments in the area of ERP deployment, corporate fund planning, group payroll planning, financial reporting, corporate budgeting, cost or expense management, and tax compliance. Today, he will educate you on professional development and personal grooming. Dear students, you are all advised to listen to him attentively and also ask good questions to gain maximum knowledge from our praiseworthy guest speaker. Now, I would like to invite Mr. Farooq Hamid, Chief Financial Officer, Wilshire Labs Private Limited, Pakistan, to have an inspirational and interactive session with our students. Dear students, welcome him with a huge round of applause. Mr. Farooq Hamid, Chief Financial Officer, Wilshire Laboratories Private Limited. स्टूडेंट्स के साथ बात करना बड़ा मुश्किल सा काम है फ्रैंकली। अगर मेरी आवाज़ कहीं कांपे और कहीं आई गो आउट ऑफ अरे, तो आप मुझे इतना सा मार्जिन ज़रूर देंगे कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। डांटता ढूंढता हूँ, ऑफिस में बच्चों को पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन किसी क्लासरूम इन्वायरमेंट में कुछ बताना इट इज़ टोटली डिफ़िकल्ट एंड डिफरेंट। तो पहला एक्सपीरियंस समझ लीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ाते ज़रूर रहे हैं, लेकिन बहरहाल एज अ प्रोफेशनल इट इज़ टोटली डिफिकल्ट जॉब। सो I am here to advise you to discuss a few elements of professional development. इससे पहले सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसके to be very precisely and to be very clear, there are two dimensions, there are two types of development. There is personal development and there is professional development. इसको जब आप एकेडमिकली आप इसको देखते हैं तो आप इसको बांट सकते हैं दो कोनों में, दो खासों में, दो मंतकों में, दो एरिया में, कि पर्सनल डेवलपमेंट है, देयर इज़ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। बट लेट मी वेरी क्लियरली टेल यू, पर्सनल डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये दोनों एक फ्यूजन का नाम है। ये दोनों कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ के, ये कुछ ना कुछ सलाहियतों के फ्यूजन का, एक दूसरे के साथ मिल जाने का, ट्विस्ट कर जाने का नाम है, जिसे आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लोगों से कंपेटिटिव हो सकते हैं। क्या बीइंग स्टूडेंट अगर मैं आपसे जान पाऊँ, क्या सबसे पहले अगर आप मुझे बता सकें आप यहाँ पे क्यों हैं, वाई यू हैव जॉइंड UMT एंड वाई यू आर सिटिंग ओवर हेयर, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ? For a degree? For a career? Or for a learning? Okay. How many of you want to be an entrepreneur in your future? Future entrepreneurs? Only one of them? 2, 3? Okay. Teachers? Future teachers? Do we have? इतने बुरे नहीं होते। ओके, तो फिर क्या है और क्या करना चाहते हैं?
कुछ बताएंगे प्लीज़? आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और दो लोग, शायद टीचर कोई भी नहीं बनना चाहता, जॉब करना चाहते हैं, यू वांट टू हैव अ गुड जॉब, जस्ट जॉब, ओके. डू यू थिंक दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है? सिर्फ जॉब सीकिंग? जॉब सीकिंग बड़ी अच्छी चीज़ है जी, ये बड़ा आप अगर आप इसके लिए आए हैं तो मुझे दो चीज़ें आपके सामने मुझे वजाहत करने का मौका मिलना चाहिए. जब भी कोई एबिलिटी हासिल की जाती है या उसके बारे में सोचा जाता है तो उसका इस्तेमाल खुद को बेहतर करने के लिए होता है. उसका पहला इस्तेमाल खुद को, अपने आप को किसी न किसी डायमेंशन में बेहतर करना है. उसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी के साथ हो सकता है. उसका ताल्लुक़ आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, यानी वो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ जो आपको किसी ख़ास प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चाहिए, उसको बेहतर करने से हो सकता है. ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है. लेट मी टेल यू, हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट को इस सेंस में कैद कर देते हैं कि देयर कुड बी समथिंग जो हम लर्न कर लें और हमें जॉब मिल जाए, हम लर्न कर लें और हम शायद कुछ कर पाएँ. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ज़रूरत पेश क्यों आती है. The continuous process of acquiring new knowledge and skills that relates to one to profession or target profession. सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं. अगर कोई शख्स ये नहीं जानता कि उसे कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, तो बिलीव यू मी, ये बहुत नामुमकिनात में से है कि आपको रास्ता मिल जाए. ये नामुमकिनात में से है कि आप वहाँ पहुँच जाएं. दुनिया में कोई चांस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती जनाब अली. हम तकदीर पे भरोसा करते हैं, हम उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए प्रोफेशनलिज्म जो कहता है, जो सिखाता है, तकदीर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. सबसे पहले तो आपको अपने लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई राह खुद चूज़ करनी पड़ती है. अगर आपने वो सीख ली है, वो समझ ली है, तो उससे मुतलका ही आपको कोई ना कोई एबिलिटीज़ खुद में बढ़ानी है, पैदा करनी है और एमुलेट करनी है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी के बारे में कुछ आप मुझे बता सकते हैं कि इसका सबसे एक जो गहरा कंसेप्ट है, जो एक बुनियादी कंसेप्ट है ज़िंदगी का, वो क्या है? इसकी बुनियादी इकाई क्या है ज़िंदगी की? ज़िंदगी की बुनियादी इकाई क्या है? वक्त. और वक्त का सबसे अहम बिहेवियर क्या है? वक्त का सबसे अहम बिहेवियर क्या है? ये गुजर जाता है, ये गुजर जाता है. अगर ये गुजर जाता है, इसका मतलब है कि इट इज़ अ कॉस्ट यू आर इनकम एवरी डे. एक स्टूडेंट कॉलेज में आता है, वो क्लासेस लेता है या नहीं लेता, कुछ भी करता है, वो शाम को घर जाता है तो वो द डे इज़ ओवर, द टाइम इज़ ओवर. वो कॉस्ट चाहते ना चाहते हुए इनकर हो चुकी है. क्या उस कॉस्ट का कोई रिटर्न वो लेके गया है? ये नहीं गया. दिस इज़ व्हाट लाइज इन योर बिहेवियर, दिस इज़ व्हाट लाइज इन योर डिसीजन, कि आप किस माइंडसेट के साथ सुबह आए थे. ठीक है. तो इसमें जब हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कहते हैं, तो मैं आपको अब सबसे नीचे अगर देखें तो मार्शल गोल्डस्मिथ की बड़ी खूबसूरत एक किताब है, उस पर बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी बना हुआ है. व्हाट गॉट यू हियर, व्हाट वॉन्ट गॉट यू देयर. आज आप जिस चीज़ की बिना पे, जिस सलाहियत की बिना पे यहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हैं, जो भी जहाँ जिस पोजीशन पे है, वही स्किल सेट, वही कम्बिनेशन ऑफ एबिलिटीज़, वही नॉलेज लेवल, वो आपको वहाँ नहीं लेके जा सकता. आप यहाँ तक आ गए हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी एबिलिटी की बिना पे आए हैं.
कुछ ना कुछ कैपेसिटी है आपके पास, लेकिन इफ़ यू आई सम हायर पोजीशन, यू शुड हैव समथिंग न्यू, यू शुड हैव समथिंग जो आपने आज तक कभी पहले नहीं किया। इसके लिए अगर मैं आपसे दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा, सबसे बड़ा इंसान के सीखने के लिए, सीखने में सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है? आप कुछ नया लर्न करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा बैरियर क्या है उसमें? सॉरी, आई कांट हियर यू। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ नॉलेज कि कुछ नया सीखना है, और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। ओके, इसकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस आपको आपके अंदर से आती है, और उसे अरबी में कहते हैं शाकिला। दैट इज़ योर ब्रेन स्ट्रक्चर, आपके सोच का अंदाज़। ये सोच का अंदाज़ आपके लिए 4 चैलेंजेस पैदा करता है। मैं ये नहीं कर सकता, जो ये कर सकता है शायद मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मुझसे ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और अगर मैंने कर लिया तो मैंने काम करना पड़ा। समटाइम आप कुछ नया सीखने से, कोई नया चैलेंज लेने से इसलिए भी घबरा जाते हैं कि यू विल बी अकाउंटेबल फॉर। जब मैं कहता हूँ कि काम करना पड़ जाएगा, उससे मुराद ये नहीं काम से घबराना, यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर, यू विल बी आस्क्ड फॉर। तो अकाउंटेबिलिटी से घबराना एक इंसान की, हमारी सोच का एक, उस चीज़ से मैंने कहा शाकिला, दैस स्ट्रक्चर के अंदर वो ये 4 चीज़ें हमें इससे रोक देती हैं। तो सबसे पहली जंग जनाब अली, अगर आपको लड़ना है तो शायद आपको अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है। अगर आपके ख्याल में, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, अगर आपका ख्याल ये है कि आफ्टर 13 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सो मच नॉलेज एंड ह्यूज डिग्री, मैं आपके पास कोई सक्सेस का कोई फार्मूला लेके आया हूँ, मेरे पास आई गॉट सम पिल फॉर यू, आई गॉट अ कैप्सूल ऑफ सक्सेस फॉर यू, नो सच थिंग एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। यकीन कीजिए, आज से 14 साल, 15 साल पहले, 17 साल पहले हम भी शायद कामयाबी के इसी तरह किसी न किसी दवाई के इंतज़ार में थे। तो ऐसा सोचना बुरा नहीं है, गलत नहीं है, इट्स नेचुरल, बट लेट मी एडमिट, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कुछ है बेहतरी के लिए, अगर कुछ है लर्न करने के लिए, तो दैट इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, दैट इज़ अ प्रोसेस। मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ, उसके सिर्फ 5 ऐसे कोने हैं जिस पे अगर आप थोड़ा सा खुद को पॉलिश कर लें, थोड़ा सा उसके बारे में काम कर लें, आई कैन गारंटी, दिस इज़ अ बोल्ड वर्ड आई एम यूजिंग, गारंटी, आई कैन गारंटी सक्सेस, बट इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस। लेट मी रीइटरेट, मुझे दोबारा कहने दीजिए, इट इज़ अ प्रोसेस। आपको उन सारे कोनों पे एक साथ कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। अगर आपको कोई भी शख्स आज के बाद ये बताने की कोशिश करे कि ये डिग्री आप लेके अभी निकलेंगे, यू आर हेयर फॉर अ डिग्री और यू आर हेयर फॉर अ नॉलेज, अगर आपको ये चूज़ करना पड़े, हैव अ लिबर्टी फ्रॉम अजीम नाज साहब, अगर आपको इसमें से चूज़ करना पड़े, काइंडली नॉलेज को, स्किल को डिग्री के ऊपर प्रेफरेंस दे दीजिए। मैं चूँकि टेबल की दूसरी साइड पे बैठता हूँ, व्हेन आई इंटरव्यू पीपल, when we advertise a position, we have that much bunch of CVs with us. आप हज़ारों हैं, अब लाखों हैं जो अब यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लेकिन आप एक चीज़, आपको शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने की ज़रूरत है, यू बिलोंग टू अ प्रिविलेज्ड क्लास। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? रिसेंट सेंसस हुआ 22 to 20 मिलियंस, ओके, इसमें आप जैसे बच्चे कितने हैं? 25 to 30% ऑफ पॉपुलेशन। उसमें से कितने हैं जो आपकी पोजीशन पे बैठे हुए हैं? दे हैव जॉइंड अ यूनिवर्सिटी, 3%, 4%। You are a privileged class. If you are privileged class, gentlemen, it poses a great responsibility on your shoulder. अगर आपको ये बाय लक मिल गया है, बाय एफर्ट मिल गया है और बाय चॉइस मिल गया है
तो इसका मतलब ये है कि फिर आप बाकी 95% के लिए नाउ यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो नाउ यू हैव टू नर्चर दैट, नाउ यू हैव टू डेवलप इट मोर। आपको उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं प्रोसेस के हवाले से, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, ये 5 चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। 5 लिखने में 5 हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ी थोड़ी सी ट्वीक करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है, और अल्टीमेटली आप इसमें से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड एंड एडमिट योर वीकनेस। स्ट्रेंथ सारों को पता होती हैं। कभी आईना देखा? रोज़ देखते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता, बल्कि मेरे जैसे तो 15-15 मिनट देखते रहते हैं। यस, आई एम गुड। हाँ, आईना देखते हैं। तो आईने का इस्तेमाल क्या है बच्चों? इट जस्ट गिव यू अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ट्रू सेल्फ। लेकिन इस आईने में एक खामी है, ये हमें हमारी अच्छी अच्छी चीज़ दिखाता है। मेरे जैसा मीडियोकर भी शाहरुख बनने लगता है। ये हम सबके साथ है। हम अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। तो आईना जो हमें रिफ्लेक्शन देता है, दैट इज़ नॉट अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ। वो हमारी ख्वाहिशात का, हमारे एहसासात का परताव होता है जो हमें आईने में नज़र आता है। शक्ल वही होती है, उसके अंदर हुस्न वो होता है जो हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को देखना चाहें, उसके लिए क्या आईना है? उसके लिए आपकी सोच का, आपकी फ़िक्र से बढ़ के कोई आईना मौजूद नहीं है। उसके लिए आपको खुद के रूबरू होना पड़ेगा। इंग्लिश में उसे कहते हैं फेस इट। आप उससे भाग नहीं सकते। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप खुद से भाग सकें? खुद का सामना ना करना एक चीज़ है, खुद से फरार हासिल करना बिल्कुल एक दूसरी चीज़ है। ये नहीं हो सकता। जो आप हैं, जो आपके अंदर है, वो एग्जिस्ट करता है, आप उसे तस्लीम करें या ना करें। तो सबसे पहले आप, जैसे मैंने कहा, यू नीड अ रिफ्लेक्शन। एक काम ज़रूर कीजिए। हमारे पास बड़ा खुला वक्त होता है, हम उसमें से वो 90% फेसबुक को दे देते हैं, कुछ शायद ट्विटर को भी देते होंगे। तो उसमें से को 15-20 मिनट ने उसको जांचा नहीं तो वो फिर कहीं ना कहीं छुप गया। हम उससे हमने आंख नहीं मिलाई तो वो कहीं ना कहीं दब गया। बट इट इज़ देयर। सबसे पहले ये जानना प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एनालाइज कर सकें कि हम क्या हैं। और इस क्या में सवाल शायद मस्बत से ज़्यादा मनफी है। मनफी किस मानों में? खूबियाँ सारों को पता होती हैं जी। माँ को वो खूबियाँ नज़र आ जाती हैं बच्चों में जो उसमें होती ही नहीं। तो खूबियाँ बताने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, दिन में 15 मिनट तो हम शीशे के सामने खुद को अपनी खूबियाँ ही बताते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो कर दूँगा। ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम खुद को बताते रहते हैं। लेकिन जो चीज़ शायद हम कभी शौरी तौर पे बैठ के नहीं करते, वो अपने बारे में ये जानना है कि मुझे क्या नहीं पता, मेरी डेफिशिएंसी क्या है, वो क्या है जो मुझे नहीं मालूम, वो क्या है जो मैंने हासिल नहीं किया, मैंने सीखा नहीं। आज एक क्लासरूम इन्वायरमेंट में बैठे हुए ये जज करना शायद थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, बट द वेरी फर्स्ट डे यू जॉइन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको 15 मिनट में पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं। तो मेरी ख्वाहिश भी यही होगी, रिक्वेस्ट भी यही होगी कि इसकी प्रैक्टिस आज ही कर लीजिए। ये सारे जो आपके दोस्त आपके साथ बैठे हैं, जिनके साथ आप क्लास में हैं, यू आर ऑल कंपेटिटर्स जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू आर कंपेटिटर्स। ये दोस्तियाँ यहाँ तक रह जाती हैं। फिर सेम पोजीशंस के लिए आप कंटेस्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि वही लोगों के साथ आप उस वक्त अपना कंपैरिजन कर रहे होगे। सो अगर कल यही काम करना है तो आज क्यों नहीं किया जा सकता? तो कंपेयर कीजिए, फेस कीजिए, अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डेवलप, व्हाट यू आर गुड एट एंड व्हाट यू आर नॉट गुड एट। एज ए प्रोफेशनल मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मैंने कहा कि हम डजन्स ऑफ इंटरव्यूज़ करते हैं। 3 चीज़ों में हम नॉर्मली देखते हैं कि बच्चे लैग करते हैं।
उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सोशल मीडिया की वजह से भी शायद हमें प्रॉब्लम आया कि हम एक सर्टन लेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के अंदर मूव करते हैं। हम उसे अपने कॉन्टैक्ट्स कह देते हैं। अगर आपके 1000 2000 समटाइम मैंने 5-5 हज़ार लोगों के फ्रेंड्स देखे हैं, फेसबुक पे भी लोगों के होते हैं, बट यू स्टिल इंटरेक्ट विद 5 10 15 पीपल। इससे ज़्यादा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है उस सर्कल का। ऐसा ही है, आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो आप 3 4 5 7 का ग्रुप होते हैं, ऐसा ही है। हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी ऐसा ही देखते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है तो वो इंटरेक्ट कर लेते हैं। बट ये वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। उसकी वजह बताऊं आपको, आप जिन 5 या 7 के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसकी कोई लॉजिकल रीज़न है। वो हमें हम जैसे लगते हैं, उनको हमने किसी न किसी बुनियाद पे अपने सर्कल में शामिल किया होता है और किसी न किसी बुनियाद पे हम उनके सर्कल में शामिल होते हैं। वो बुनियाद वो कॉमननेस है एक्चुअली। हमें किसी न किसी हवाले से सोच के अंदाज में, फ़िक्र में, फैमिली बैकग्राउंड में, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बिना पे वो हम जैसे लगते हैं। उस हम जैसे की बिना पे हम अपने सर्कल डेवलप कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ हम में एक बुनियादी खामी पैदा कर देता है। वो है अपने से हट के जो शख्स है उसके साथ इंटरेक्ट करना, उसके साथ बात करना। ये चीज़ यहाँ पे तो आप बियर कर सकते हो, इट हैज़ नो कॉस्ट हेयर, बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन it will have a huge impact on your performance. If you cannot transfer your pose, your communication from silos, from one department to other department, it is going to be a question mark in your abilities. तो इसका मतलब क्या है कि आपको शायद अपने आप से निकल के दूसरों के साथ सुनने की, समझने की सलाहियत पैदा करने की भी ज़रूरत है। सबसे बड़ी सलाहियत शायद ये आपको इस वक्त सीखने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त आप बहुत बेहतरीन पोजीशन में हैं ये काम सीखने के, करने के। ऑर्गेनाइजेशन में इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसेसेस, वर्क फ्लोज, ये सारी चीज़ें आपको वो मौका नहीं देती कि आप किसी से किसी भी वक्त इंटरेक्ट कर सकें। आज आप कर सकते हैं, आज कोई भी आप प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम देखते हैं कि एक जैसे जो ग्रुप्स दे टेंड टू कि हम 5 लोग हैं, हमने प्रेजेंटेशन देनी है, हमने प्रोजेक्ट इकट्ठा करना है। अब इट इज़ क्रिएटिंग अ कंफर्ट जोन जेंटलमैन। ये आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, कर रहा है, इस पे काम कर लीजिए। अब पढ़ने आए हैं, अब ये पूछना आप लोगों से बड़ा मुश्किल सा सवाल है शायद कि आप पढ़ते हैं? क्या आप पढ़ते हैं? पढ़ने से क्या मुराद है? क्या पढ़ते हैं आप? बुक्स, कोर्स बुक्स? इससे हटके क्या पढ़ते हैं? क्या आप समझते हैं ज़िंदगी सारी की सारी इन्हीं किताबों में बंद है जो आपके बस्ते में है, इसी क्लास नोट्स के अंदर ही है? क्या ज़िंदगी इतनी महदूद सी चीज़ का नाम है? क्या प्रोफेशन इतनी महदूद सी चीज़ का नाम है जो आपकी 2 किताबों के अंदर आ जाए? क्या ज़िंदगी सिर्फ एक अकाउंटेंट बन जाने का, एक प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजर बन जाने का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन जाने का, इवन आप इसको हायर अप करते जाएं, इसी का नाम है? क्या ज़िंदगी के यही ज़ाविये हैं? क्या आप पूरी इस लाइफ के जब पैटर्न से गुजरते हैं तो क्या सिर्फ आपकी पोजीशंस, आपके ओहदे, आपकी ये एक सर्टन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मैटर करती है? या इससे हटके भी कुछ है? बहुत कुछ है। ज़िंदगी इससे बहुत बड़े होराइजन का नाम है, ये इससे बहुत बड़े स्पेक्ट्रम का नाम है जिसके लिए हम समझते हैं हम खुद को तैयार कर रहे हैं। आप सिर्फ शायद 10-20% ऑफ लाइफ उसके हम फोकस करते हैं। बिजनेस एजुकेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशन हो, किसी भी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, एक चीज़ स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर जाते हैं, और शायद हम टीचर्स भी, हम मॉडरेटर्स भी, ज़िंदगी को उसके स्पेक्ट्रम में समझने की ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी को उसके पूरे स्पेक्ट्रम में, उसके तमाम ज़ावियों से समझने की कोशिश नहीं करते, आई कैन टेल यू, यू कैन नॉट बी अ ग्रेट प्रोफेशनल।
आप जब ऑफिस एनवायरनमेंट में किन लोगों से मिलते हैं? बीइंग मैनेजर क्या करना होता है आपको? एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर व्हाट आई हैव टू डू? आपको क्या लगता है मुझे क्या करना होगा? मैनेज मैनी पीपल, मैनेज मनी एंड इंटरेक्ट विद मैनी डिपार्टमेंट्स। मैं पेमेंट नहीं कर सकता, आई डू नॉट हैव फंड्स, बट सप्लाई चेन पीपल आर देयर हु हैव कमिटेड पेमेंट सम पार्टी। क्या करना होगा? We have to communicate, we have to sort it out, because he is wonderfully doing good in his domain, but I am also doing wonderfully great in my domain, but दोनों का इस वक्त ऑब्जेक्टिव अगर काउंटर फिट कर रहा है, आउटर बैलेंस कर रहा है, क्या करने की ज़रूरत है? एक दूसरे को समझने की। क्या ये चीज़ हमें क्लासरूम में समझाई जाती है? नहीं। ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हम कहीं पे भी नहीं सीखते। ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हमें खुद से सीखना पड़ता है। ये वो है जिसे शायद हमें खुद आज लर्न करना पड़ेगा। आप नहीं करते, अगेन अगर मैं, चूँकि इस वक्त मेरा स्कोप बड़ा लिमिटेड सा है, सिर्फ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा अगर आप ज़िंदगी को उसके पूरे वजूद के साथ नहीं समझते, पूरे जावियों के साथ नहीं समझते। तो आई वुड एडवाइज़ रीड एंड रीड। कोर्स बुक्स यकीन कीजिए आपकी ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, इससे हट के बहुत कुछ है। कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें जो, और इसमें जैसे मैंने कहा, अच्छा लिखा, किसी भी मामले पे लिखा, किसी भी मौजू पे लिखा हुआ, आप आज नहीं 10 साल बाद देख लेंगे, कहीं लिख लीजिए मेरी बात, आपको कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल मिलेगा, आपको उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मिल जाएगी। कुछ भी लिखा, कुछ भी पढ़ा, कुछ भी सीखा ज़ाया नहीं जाता। तो रीडिंग हम अब देखते हैं अपने घरों में भी, अपने कोलीग्स में भी, अपने बच्चों में भी रीडिंग हैबिट्स नहीं हैं। हमारा सारा वक्त सोशल मीडिया खा गया, ये टच स्क्रीन हमारे सारे वक्त को खा गई, ये जाली से रिश्ते, जाली सी दोस्तियाँ, ये हमारे सारे के सारे ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप को खा गए। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, यकीन कीजिए इसमें से 15% पहले मांगा आपसे किसी और काम के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, उसी में से 15% और दे दीजिए। इस 15% को कहीं पढ़ने पे लगा दें, कोर्स आउटलाइन से हट के। रीड एंड रीड। तीसरी चीज, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन हर वो चीज़ है जो जिसके हम आदी हो जाएं, हर वो चीज़ जो हमें करने में मुशक्क़त नहीं लगती, वो हमारा कंफर्ट जोन है। हर वो चीज़ जो किसी फ़ैसला साजी में फ़ैसला करते हुए हमारे लिए हिच पैदा कर दे, रेजिस्टेंस पैदा कर दे, ये तो मैं कर लेता हूँ, ये कैसे होगा, ये जो आप कर लेते हो, दैट इज़ योर कंफर्ट जोन। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल डेवलपमेंट में या प्रोफेशनल्स में मैंने लोगों को मार यहाँ सिखाते देखा है। they waste their years and years of growth because they are doing good, they are getting things easy, so they do not want to learn something new, they do not want to do something new, they do not want to experience something new. Comfort zone क्या है? Which is comfortable, which is against your mental insecurities. It is something afraid to stray away. जहाँ पे आप हैं वहाँ से हट ना जाने को की जो ख्वाहिश है, that is comfort zone. कोई आगे बढ़ने का रास्ता, कोई भी कुछ चीज़ सीखने का रास्ता, किसी भी प्रोफेशन में आगे जाने का रास्ता कंफर्ट जोन से बाहर निकले बगैर मुमकिन नहीं है। इसमें से कुछ चीज़ें आज हो सकता है आपको लगें कि आप पे अप्लाई नहीं करती, ये तो शायद आप ऑफिस में जाते हैं, यू विल गेट अ पोजीशन, उसके बाद आप पे अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट से, हर शख्स का एक कंफर्ट जोन है। एक मज़दूर का भी एक कंफर्ट जोन है, यू नो।
वो जो सुबह से लेकर शाम तक वज़न उठाता है उसका भी एक कंफर्ट जोन है। क्या मैं आपसे समझ सकता हूँ उसका कंफर्ट जोन क्या है? बोले प्लीज़। एक मजदूर का कंफर्ट जोन क्या हो सकता है जो सुबह से लेकर शाम तक बोझ होता है? रोज रोज का, ओके, देन इट ब्रिंग्स हिम अ कॉन्फिडेंस कि मैं 20 किलो का या 40 किलो का बोझ उठा लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ उसके लिए क्या नुकसान कर रही है? उसने कभी मिस्त्री बनने का नहीं सोचा। आपको पता है कि लेबर का रेट क्या है? ए फी इज़ गेटिंग 600 रुपीज़, अ मेसन इज़ गेटिंग 1200 रुपीज़। क्या चीज़ है जो एक मिस्त्री को एक बोझ ढोने वाले से मुमताज़ कर देती है, बड़ा कर देती है? हिज टेक्निकल स्किल्स। लेकिन क्या वो उसने यही सोच लिया था पहले दिन ही? ही कुड बी अ लेबरर वन डे बट नाउ ही इज़ अ मेसन। यू गॉट इट? वैल्यू एडिशन 100%, वैल्यू एडिशन। और वर्क रेशो 75-25। वो दिन में मैक्सिमम जो बोझ उठाता है वो एक ईंट का बोझ होता है, बिकॉज एक वक्त में वो एक ईंट ही लगा रहा होता है दीवार पे। कितना फ़र्क है? तो वो मिस्त्री सारी ज़िंदगी मिस्त्री रहता है और वो मज़दूर सारी ज़िंदगी मज़दूर रहता है। किस वजह से? बोझ ज़्यादा ढोता है, मेहनत ज़्यादा करता है, बिकॉज ही गॉट हिज कंफर्ट जोन। तो इसका मतलब है कि कंफर्ट जोन ऐसा नहीं किसी बोझ का नाम है। कंफर्ट जोन उस चीज़ का नाम है जिसके करने के आप आदी हो जाएं, जो आपको आसान लगने लगे। क्या कोई चैलेंज भी कंफर्ट जोन बन सकता है? क्या कोई चैलेंज भी कंफर्ट जोन बन सकता है? कोई मुश्किल चीज़ कंफर्ट जोन बन सकता है? मैं आउट ऑफ टाइम, कैन कंटिन्यू। अगर आप कंफर्ट जोन की, जैसे मैंने डेफिनेशन की बात की, अगर आपने यू टेक ऑन अ चैलेंज एंड यू मास्टर इट, जेंटलमैन, इट विल बी अगेन अ कंफर्ट जोन। You take on a challenge, you practice it, you master it, it is a comfort zone now. तो क्या साबित हुआ? हर रोज़ आपको अपना कद पिछले दिन से बढ़ाना पड़ता है। जिस दिन आप अपना कद बढ़ाना रुक जाते हैं उस दिन आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट रुक जाती है। सब तो ट्राउट फिश के बारे में जानते हैं, इसकी खूबी क्या है? Mostly it goes against the flow. Mostly it goes against the flow of water. So this is the most fascinating ability of a trout. तो जब हम कहते हैं get out of your comfort zone, so we want you to be a trout fish. You beautiful people, we want you to be a trout fish. सादा मीठे पानी की मछली नहीं, trout fish, because it take challenges, it always take challenges. और कंफर्ट जोन से निकले बगैर, जैसे मैंने अर्ज किया, अब अपना कद नहीं बढ़ा सकते। तो चौथा हिस्सा जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, दैट इज़ आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डाइवर्सिफाई योर एक्सपीरियंस। हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें आता ही है। कुछ वक्त के साथ सीख लेते हैं, कोई वक्त सिखा जाता है, कुछ क्लासरूम में सीख जाते हैं, कुछ दोस्त सिखा देते हैं, कुछ टीचर मार के सिखा देता है। कहीं ना कहीं हम किसी मार्क्स की वजह से, कहीं ना कहीं किसी कंप्लायंस की वजह से, कंपल्शन की वजह से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन क्या ये सीख लेना, जितना भी आपका सीख लेना, ये काफ़ी है? तो ऐसा नहीं है। बीइंग प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, आपको शायद 3 चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वेस्ट में इस पे बहुत काम किया जाता है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स क्लासरूम से निकलते हैं, दे हैव अ डिग्री, एवरीथिंग दे हैव, लेकिन जब वो फेस करते हैं, आउटर वर्ल्ड इज़ रियली क्रूअल जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आउटर वर्ल्ड इज़ रियली क्रूअल। हम यहाँ बैठ के समझते हैं कि हम सीख लेंगे, हमारे पास दैन वी हैव अ डिग्री और हम कुछ ना कुछ पढ़ के निकलेंगे, एंड वर्ल्ड इज़ देयर, हैव रोजेज इन देयर हैंड्स एंड दे आर रेडी टू वेलकम अस। यकीन कीजिए ऐसा नहीं है। मैं उस वर्ल्ड का हिस्सा हूँ, एंड आई कैन गारंटी, आज जिस टोन में, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फेस मी इन माई ऑफिस एंड आई विल टेल यू आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
इस आसानी की उम्मीद मत रखिए। आपसे हमें बहुत कुछ चाहिए। आप समझते हैं आप MBA, MBA, MCOM आप डिग्री लेके आ जाते हैं, हमें वो चाहिए। यकीन करें हमें नहीं चाहिए। आपकी डिग्री इज जस्ट अ पासपोर्ट। आप कमरे से अंदर दाखिल हो जाते हैं, हम उसको उठा के फेंक देते हैं, हम उसको देखते भी नहीं। ऐसा नहीं कि वो ज़ाया गई है। आप कमरे के अंदर दाखिल इसलिए हो सके हैं बिकॉज आपके पास वो डिग्री थी। नहीं होती तो आप मेरे कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। बट नाउ यू आर देयर। तो उस ट्रांसक्रिप्ट को हमने आज तक नहीं देखा। वी वॉन्ट टू नो यू, वट यू हैव गॉट इन योर सेल्फ। आपके अंदर क्या है, आप किस एबिलिटीज के साथ आए हैं, आप क्या डिलीवर करोगे। एक बच्चा हमारे पास इंटरव्यू देने आता है तो वो सबसे पहले पूछता है मुझे मिलेगा क्या, कितने पैसे दोगे। बिकॉज जॉब के साथ जुड़ा हुआ बुनियादी सवाल ही है कितने पैसे मिलेंगे, तनख्वाह कितनी होगी। द पर्सन हु इज ऑफरिंग यू अ सैलरी, डज ही और शी हैज अ राइट टू आस्क जेंटलमैन आप हमें क्या देंगे। he is in a much better position to ask because you are there to take a job, he is not offering it. तो इसका मतलब ये है कि you should offer a wider basket of experience. आपको उसे हर वो चीज़ जो आप किसी ना किसी तरह क्यूमुलेट कर सकें वो ऑफर करनी है। तो हम सिर्फ एक स्टडीज़ का एक फ्लेवर लेके जाते हैं, वो काफ़ी नहीं है। काइंडली अगर आपको कहीं मौका मिले वॉलंटियर वर्क कीजिए। इवेंट प्लानिंग आपके यहाँ डिफरेंट जगह पे जब भी होती है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जो सबसे बैक बेंच पे बैठ जाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा, चीज़ें हो जाती हैं, बट वो कुछ सीखने से महरूम रह जाता है। पार्टिसिपेट। एंड द लास्ट थिंग, जस्ट मेक इट हैपन। चीज़ें खुद से कभी नहीं होती। मैंने 39 ईयर्स ओल्ड, मैंने खुद से कुछ होते अपने लाइफ में नहीं देखा। 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने चीज़ों को खुद से होते नहीं देखा। आपको करना पड़ता है। कोई शख्स आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा। बड़ी तलख सी हकीकत है। ये मैक्सिमम है जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते थे, जो आज उन्होंने कर दिया, आप यहाँ बैठे हैं। अब यकीन करें इससे आगे वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ आपको ही करना है और करना भी ज़रूरी है। जो चीज़ इसका मतलब क्या है, जो करना है उसको कर गुजरिए। वेट एंड सी नाम की दुनिया में कोई चीज़ एज अ स्ट्रेटजी एग्जिस्ट नहीं करती, एज अ फ्रेम ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है। जब नहीं कुछ करने को दिल करता तो वेट एंड सी, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी इन बिजनेस वर्ल्ड। एज अ प्रोफेशनल यू डू नॉट हैव अ चॉइस कि चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी या कोई ना कोई कर देगा। इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी अ वंडरफुल प्रोफेशनल, वन थिंग यू मस्ट डू एंड यू मस्ट डू ऑलवेज, बी प्रोएक्टिव। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा प्रमोशंस उनको मिलती हैं, सबसे ज़्यादा सैलरी उनको मिलती है जो हर उस काम के आगे खड़े हो जाते हैं कि सर मैं करूँगा। अब यकीन कीजिए मैनी टाइम्स दे फेल टू डू दैट, मैनी टाइम्स, बट इट डजेंट मैटर इन ऑर्गेनाइजेशंस हाउ मैनी टाइम्स यू फेल्ड। what matters in organization how many times you attempted to do that, and exactly this is what is true with life. यकीन कीजिए ज़िंदगी भी आपको आपकी इस अटैम्प्ट्स के साथ एवेल्यूएट करती है, कामयाबियों के साथ, नाकामियों के साथ एवेल्यूएट नहीं करती है। डर निकाल दीजिए, कुछ सीखने का, कुछ नया करने का कुछ नहीं होगा। आज भी कुछ नहीं है। अगर फ़र्क देखा जाए तो आज भी कुछ नहीं है। कोशिश करोगे, नाकामी होगी तो फिर क्या हुआ, फिर भी कुछ नहीं है, तो फ़र्क क्या पड़ा। क्या इसके दरमियान कुछ फ़र्क है? नहीं किया कुछ नहीं है, किया नाकामी होगी तब भी कुछ नहीं है। दरमियान में क्या कोई फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? क्या नहीं, सिर्फ कोशिश और एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंस। और अल्टीमेटली आपको ये तो बच्चों को पता ही है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई आपसे क्या पूछता है, एक्सपीरियंस कितना है।
गॉट इट? तो नाकामी आपको वो सिखा जाती है जो समटाइम कामयाबी आपको नहीं सिखाती। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे पास आपके लिए यही कुछ ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पास आपके लिए कामयाबी का कोई मुख्तसर फार्मूला नहीं है। ये 5 चीज़ें काम किए बगैर कामयाबी का हसूल नामुमकिन। थैंक यू वेरी मच। I'm really thankful to respected Farooq Hamid Sahab that he has spared some time out of his busy schedule and came here to share with you some of the things which you will practically face in the coming days. So probably what we understood, rather what I understood from the presentation which have been shared by Brother Farooq Hamid, in fact, the thing you need to decide today is your goal, your destination. You should aim high. Like Mr. Farooq has asked you that how many of you want to become entrepreneur or want to become businessman. A few, rather a couple of you have raised your hands. So if you're not aiming high, you're not having a goal which is above than mediocre average person's goal, you can't achieve that. He is a CFO. When he was studying, so if he believes so that he want to join an accounts department only, so probably he will be in accounts department but will not be able to become CFO. So he decided to become a CFO of a company, rather it's a company. He may be aiming to become a CFO of a multinational, a global organization. So if he is not aiming to reach that goal, he will not be able to do that. Similarly, it applies to you, it applies to me also, that if you want to be at a highest position, firstly decide about that and put all your efforts to achieve that goal. अगर आप बड़ा ऊंचा नहीं सोचेंगे तो you will not be able to go there. आप aim high and put all your efforts to achieve that goal, you will be able to be at highest position. One more thing, and the last I want to share with you, gentlemen, this is for your professional development. 5 core areas which have been shared by Brother Farooq is in fact, firstly you need to identify your weaknesses. Probably he quoted that we are not able to identify our own weaknesses. But whenever you are appearing for an interview, the person who is sitting on the other side of the table, they are the best judge. So they will be judging you at that position. It's better to judge yourself at your own and come out of your circle. Interact with those people who are having different personality apart from you and learn from them. When you will learn from them, you will be able to compete, you will be able to survive, you will be able to succeed. Best of luck for all of you, and it was a great learning experience, sir. So I'm really thankful for your presence here. A big round of applause for Brother Farooq Hamid.